This is Safahan, guys. Let's start paper 4, alternative practical 5070/41, October November 2021. So, question number 1 is a student uses the apparatus to make ethanoic acid from ethanol. So, going from ethanol to ethanoic acid is basically an oxidation. Okay, it's an oxidation reaction. एंड फॉर दैट हमने यहाँ पर ये एक एपरेटस यूज किया हुआ है. इस एपरेटस में ये बंग है, यहाँ से वाटर इन है, यहाँ से वाटर आउट है, एंड दिस माइट बी द सोर्स ऑफ एरर क्योंकि हम वाटर इन वाटर आउट ये नहीं रखते कभी भी. फिर ये एपरेटस ए है, ये एपरेटस बी है, और यहाँ पर आपके पास इथेनॉल का सोल्यूशन है अलॉन्ग विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और पोटेशियम मैग्नेट 7, और हम हीट भी कर रहे हैं. वो कह रहे हैं आपसे नेम दी apparatus A and B. तो A जो है उसको हम कहेंगे लेविक कंडेंसर, ये जस्ट कंडेंसर. सो लेविक कंडेंसर इज बेसिकली ओके. बी जो है वो आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है. Okay. Now the next is identify two errors in the assembled apparatus shown in the diagram. तो obviously water in और water out जो है वो wrong adjustable है. तो पहला जो है वो वाटर इनलेट, water inlet and water outlet. Or wrong way around. Okay. और दूसरा ये कि यहाँ रबर बंग भी लगा दी. ठीक है, यूजली रबर बंग नहीं होती है हमारे पास. सो rubber bump on the top of the condenser, on the top of the condenser. Okay. The errors are corrected and the experiment is started. State why apparatus B is not heating directly using the flame of Bunsen burner. So आप जानते हैं कि ethanol जो है वो it's highly volatile and also it is very flammable. In fact, all organic molecules are flammable. तो हम लिखेंगे ethanol is very flammable. इसलिए हम उसको डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं कर सकते. Alright. Next is name a piece of apparatus that is used for heating without a flame. तो भाई आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर लीजिए अगर आप बंसन बर्नर यूज नहीं करना चाहते. ठीक है. Next is heating with apparatus A in the vertical position is called heating under reflux. Describe what happens after the vapors from apparatus B enter into apparatus A. B से A में जा रहे हैं. जब वेपर्स यहाँ से निकल कर इसमें जाएंगे तो यहाँ से वाटर इन होगा, यहाँ से वाटर आउट होगा. ये बेसिकली कोल्ड वाटर होता है. तो यहाँ पर आने वाले जो वेपर्स होते हैं वो कोल्ड वाटर की वजह से लिक्विफाई होते हैं और लिक्विफाई होकर वापस इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ड्रॉप हो जाते हैं. ठीक है. सो हम यहाँ लिखेंगे vapors of ethanol will turn to liquid
all right, and it will fall back into the bottom of the flask. Into the round bottom flask जिसको हमने B से represent किया था. Okay, that's the end of question number 1. Next question, a student investigates the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. Okay, तो सबसे पहली बात, bubbles of gas release होगा यहाँ से. Okay, और दूसरी बात, ये solid disappear हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन कर रहा है. ठीक है. Next, the student observes bubbles of a gas being produced when calcium carbonate is added to hydrochloric acid. The student does a test to show that the gas is carbon dioxide. Give a test and observation, identify carbon dioxide gas. Test. तो टेस्ट तो आप जानते हैं, pass the gas through lime water. And obviously, observation होगी, lime water turns milky or cloudy. Lime water turns milky or cloudy. Okay. State other observation a student makes when calcium carbonate is added to hydrochloric acid. तो आप बताएंगे कि solid dissolves या फिर solid disappear हो जाएगा. हमने यहाँ लिखा भी है ये, तो आप यहाँ लिख सकते हैं solid disappears. Okay. The student does an experiment to find out how the rate of this reaction changes as the concentration of hydrochloric acid changes. So basically rate of reaction है और concentration of hydrochloric acid है. So आप जानते हैं कि rate is directly proportional to concentration of HCl. यानी concentration ज़्यादा, rate of reaction ज़्यादा, concentration कम, rate of reaction कम. आप यूं भी कह सकते हैं कि concentration ज़्यादा, collision frequency ज़्यादा, rate of reaction ज़्यादा. Okay. The student measures 100 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid and pours into this beaker. याद रखिएगा कि ये excess amount के अंदर है. ठीक है. Add known mass of calcium carbonate to the acid. Immediately start a clock. Stop the clock when all the calcium carbonate has reacted. Record this reaction time. अच्छा, एक और भी याद रखिएगा कि rate is inversely proportional to reaction time. यानी अगर रिएक्शन टाइम ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, रिएक्शन टाइम कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है. ये भी ध्यान में रखिएगा. ठीक है. The student repeats the experiment several times with different concentration of hydrochloric acid. The concentration of hydrochloric acid for each experiment is changing by volume of 1 mole per dm cube. Okay. Concentration of hydrochloric acid changes by changing the volume of this. Water is added to make the total volume equal in each experiment. That's a very, very important point. The total volume needs to be remains same or equal or constant. उसके बाद वो कह रहे हैं all other variables like likely affect the rate of reaction are kept constant in each experiment. अच्छा जी, rate of reaction जो होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है? वो बहुत सारी रीजंस की वजह से चेंज होता है. सबसे पहला सरफेस एरिया. इसका मतलब सरफेस एरिया needs to be same. In fact, surface area of calcium carbonate needs to be same क्योंकि वो solid में था. इसके अलावा आप जानते हैं कि rate of reaction temperature को भी change करने से change हो जाता है. So temperature needs to be
needs to be constant, ठीक है। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन किससे चेंज होता है? प्रेशर से चेंज होता है। तो प्रेशर तो मैं लूंगा नहीं इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैशियस सब्सटेंस नहीं है, सही है। तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ कोई गैशियस सब्सटेंस नहीं है इसलिए मैं प्रेशर का इफेक्ट नहीं लूंगा। कंसंट्रेशन वो बात कर रहे हैं आपसे। सो आई थिंक वी नीड टू कंट्रोल दीज टू वेरिएबल्स। सो याद रखिएगा कि इन दोनों को मैं कंट्रोल वेरिएबल भी कह सकता हूँ, जो रिएक्शन में चेंजेस लेकर आते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल, यानी ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, ओके। The results are shown in the table. Okay. Complete the table to show the two missing volumes. अच्छा जी, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना होना चाहिए? 100। जाहिर सी बात है अगर 100 होना चाहिए तो अगर ये 20 है आपके पास तो 100 करने के लिए यहाँ पर 80 होना चाहिए, राइट। अगर ये आपके पास 20 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? टोटल वॉल्यूम 100 करने के लिए 80, ओके। फिर वो कह रहे हैं स्टेट विच एक्सपेरिमेंट हैज एन अनॉमलस रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम अनोमलस कौन सा है? ये वाला बहुत, देखो ये 30 था, लेकिन एकदम से फिर 150 हुआ, तो ये बहुत मैसिव जंप है। ऑलराइट, फ्रॉम 30 टू 150 इट्स अ ह्यूज जंप। ऑलराइट, तो इट्स एक्सपेरिमेंट 2 का जो रिएक्शन टाइम है वो बेसिकली अनोमलस पॉइंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट शुड डू टू चेक इफ द रिएक्शन टाइम इन C1 इज अनोमलस। अगर कोई चीज अनोमलस होती है तो उसको हम खत्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो एक्यूरेसी के लिए वी नीड टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट until we'll get the consistent value, okay। so अगर मुझे इसको अनोमलस से हटाना है तो मुझे जाहिर सी बात एक्सपेरिमेंट 2 को परफॉर्म करना होगा, रिपीट करना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिपीट एक्सपेरिमेंट 2, ओके। हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे भाई ये पॉइंट अनोमलस तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे तो इसका मतलब ये अनोमलस नहीं रहेगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट 2 to get the consistent result। उसके बाद है आपके पास स्टेट विच एक्सपेरिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। स्मॉलेस्ट रेट किसका होगा? जिसका स्मॉलेस्ट रेट क्या होगा? जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है उसका रेट कम है। तो रिएक्शन टाइम किसका ज्यादा है? एक्सपेरिमेंट 5 का ज्यादा है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 5 बोलेंगे हम। ओके, नेक्स्ट describe how the rate of this reaction changes as the concentration of the hydrochloric acid increases। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है एंड ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे एज कंसंट्रेशन increases collision frequency increases rate of reaction increases। Okay, there is no suitable catalyst for this reaction। Suggest two variables other than concentration of the hydrochloric acid, the mass of calcium carbonate that affects the rate of this reaction। तो मैंने आपको बताया ये रहे वो दो, surface area and temperature। तो surface area calcium carbonate का होगा
और टेम्परेचर हो गया, ठीक है। प्रेशर हमने नहीं लेना था क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। So that's the end of question number 2. Let's move on to the next question. That is question number 3. And seems like ये salt analysis से related है. A student is provided with 3 unlabeled bottles which contain a solution. The student knows that the bottles contain dilute sulfuric acid, aqueous calcium chloride, and aqueous zinc chloride. The student is provided with dilute nitric acid, aqueous barium nitrate, aqueous sodium hydroxide, but no other chemicals or indicators. For each of the 3 unlabeled bottles, describe a test and give the observation to identify the content of the bottle. You must describe tests that give positive results to identify the content of each bottle. It must be clear in your answer which solution identified by each positive results. Chemical equations are not required. Okay. So let's suppose मेरे पास बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अगर मैं उसको बेरियम नाइट्रेट्स के साथ ट्रीट करवाऊं in the presence of nitric acid, then obviously barium sulfate के white precipitates बनेंगे. Okay. So मैं सबसे पहले कर लेता हूँ with dilute sulfuric acid. Okay. तो इससे related we have a space. Yes, we do have a space. चलो कर लेते हैं. तो हम यहाँ लिख देते हैं add few drops of dilute nitric acid followed by barium nitrate. ये मेरा टेस्ट हो गया. ओके, अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑब्जर्वेशन है मेरे पास white precipitates are formed. तो अगर white precipitates फॉर्म हो गए, इसका मतलब जो अननोन बॉटल है दैट कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ अब हम लेंगे कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड. विद कैल्शियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. सही है. इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? NaOH ऐड कर देते हैं. ऐड aqueous solution of sodium hydroxide. So according to salt analysis, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, हमें जिंक के भी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं और कैल्शियम के भी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? व्हाइट precipitates are formed. ठीक है. अब ये तो दोनों अनआइडेंटिफाइड बॉटल्स के अंदर, जिस बॉटल में ये है उसमें भी प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, जिस बॉटल में ये है उसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं. तो पॉइंट है कि भाई हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन सी बॉटल में जिंक है और कौन सी बॉटल के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है. तो हम क्या करेंगे? हम कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं और हम कैल्शियम क्लोराइड के लिए बात कर लेते हैं. टेस्ट तो हम कर चुके हैं. अब टेस्ट में है कि ऐड aqueous sodium hydroxide
Shoot, my bad. Add aqueous sodium hydroxide. Observation. White precipitates. सही है. Precipitates remains insoluble in excess aqueous NaOH. Precipitates remains insoluble in excess aqueous NaOH. अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे पता चल गया कि भाई अब जिंक क्लोराइड है. तो जिंक क्लोराइड के लिए क्या करेंगे? फिर दोबारा से टेस्ट करेंगे. और टेस्ट है एट aqueous NaOH. तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएगी इसकी इनिशियली? वाइट प्रेसिपिटेट्स. सही है. वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म. और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये डिसॉल्व हो जाएंगे और कलरलेस सॉल्यूशन देंगे. तो आप बताएंगे प्रेसिपिटेट्स और soluble in excess aqueous NaOH to give a colorless solution. Okay, I hope it makes sense to you. Next, question number 4. A student determines the percentage by mass of iron in a sample of impure iron. The student measures the mass of an empty beaker. Okay. The student adds a sample of impure iron to a beaker and then measuring the mass of the beaker and the impure iron. ठीक है. Calculate the mass of impure iron used in the experiment. Guys, see, ये mass of beaker है, ये mass of beaker plus impure iron है, दोनों को subtract करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा. तो ये है मेरे पास 38.31 minus 36.53. सो मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.78. मैं उठाकर यहाँ पे लिखता हूँ 1.78 ग्राम. ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं, in excess of dilute sulfuric acid is added to the beaker containing impure iron. The dilute sulfuric acid reacts with the iron as shown. आप नोट करें, ये redox रिएक्शन भी कह सकते हो और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. अच्छा, रीडॉक्स क्यों? आयरन 0 है यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट फॉर्म में, यहाँ 2+ है. तो बेसिकली देखा जाए तो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है फ्रॉम 0 to +2. सही. ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन आयन is converting into hydrogen gas. That means ये +1 से 0 में आ रहा है. इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, which is why it is redox. वो कह रहे हैं आपसे give a test and observation to identify hydrogen gas. Test, use the burning splinter. In the gas jar. Observation, it burns with a pop sound. Okay. Impurities in the impure iron do not react with or dissolve in dilute sulfuric acid. The impurities are separated from the apparatus solution by filtration. Okay. ये जो impurities हैं
ये बेसिकली रेजिड्यू होंगी आपकी, ठीक है, और ये आपका फिल्ट्रेट है, उसने कह दिया। Suggest how the student makes sure that no Fe2 plus ion remains on the filter paper. जाहिर सी बात है, मैं मेक श्योर करूंगा कि इस रेजिड्यू के अंदर कोई भी Fe2 प्लस आइंस ना रहे, एंड फॉर दैट मैं इस रेजिड्यू को वॉश करूंगा विद डिस्टिल वाटर। ओके, ऑलराइट। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वॉश द रेजिड्यू विद डिस्टिल वाटर, ताकि कोई भी ट्रेसेस हैं तो चले जाए फिल्ट्रेट में। ओके, next is the filtrate is transferred from the conical flask into a volumetric flask. इसका मतलब मुझे dilution करनी है। Then suggest how the student should make sure that all the filtrate is transferred from the conical flask to the volumetric flask. आपने करना ये है कि आपने इस solution को उठाया है, इस filtrate को, और इस filtrate को उठाकर आप conical flask में place करेंगे, volumetric flask में place करेंगे। Transfer the filtrate in a volumetric flask ओके। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि इस कॉनिकल फ्लास्क को मैं डिस्टिल वाटर से वॉश करूंगा और उस वॉशिंग को उठाकर इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस कर दूंगा, ठीक है। वॉश द कॉनिकल फ्लास्क wash the conical flask with distilled water and transfer this washing in a volumetric flask. ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशन को मेकअप करने का, ठीक है, याद रखना। वो कह रहे हैं the solution in the volumetric flask is made up to 500 cm cube with distilled water. This is solution P, ठीक है। The student transferred 25 cm cube of P into a clean conical flask. Name a piece of apparatus to use transfer 25 cm cube of this. अब जानते हैं कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम चाहिए आपको, एक एक्यूरेट वॉल्यूम आपने मेजर करना है और ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे पिपेट। ऑल राइट, पिपेट के बाद solution Q is potassium magnate 7, which has a concentration of 0.01 mole per dm cube. The student washes out the burette with distilled water, washes out the burette with a solution, यानी ये आपने wash किया और ये आपने rinsing की, also called rinsing, okay, also called rinsing। तो मैंने आपको कहा था कि burette wash भी होती है, rinse भी होती है। डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे, फिर प्रॉपर नॉन सोल्यूशन से, और फिर जो सोल्यूशन आप ले रहे हो लाइक KMNO4 उससे रिंस करोगे। रिंसिंग के बाद हम फिल करेंगे ब्यूरेट को KMNO4 से, KMNO4 को ऐड करेंगे conical flask में through burette until the end point is reached. Identify the solution used to wash out the burette before it is filled with Q. KMNO4 का solution होगा obviously, तो हम बोलेंगे KMNO4 solution of concentration 0.0100 मोल पर dm क्यूब। सही है, जरूरी नहीं है कि आप ये कंसंट्रेशन मेंशन करें, KMNO4 सॉल्यूशन भी लिख के दे सकते हैं एग्जामिनर को, कोई इशू नहीं है। Okay, the student does 3 titrations. Diagram shows part of the burettes with the liquid levels at the beginning and at the end of each titration. Back and forth करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहली रीडिंग है
लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको उठाकर कॉपी करता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ पर ना आना पड़े। ओके, यहाँ रखते हैं, हम इसको छोटा कर लेते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली हमारी इनिशियल रीडिंग है 0.0 cm3। उसके बाद है हमारे पास 23.8। उसके बाद नेक्स्ट इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग है हमारे पास 10.4, और फिर हमारे पास है 34.6। ओके, फिर थर्ड है हमारे पास 12.3, और ये है फिर हमारे पास 36.1। टेक आउट द डिफरेंस ऑफ ईच। ये हो जाएगा 23.8, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24.2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 23.8। वो कह रहे हैं आपसे बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स बताएं, तो ऑब्वियसली बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट 1 और 3 होगा क्योंकि कंसिस्टेंट वैल्यूज हैं ये दोनों। ओके, use the ticked value to calculate the average volume of Q। तो एवरेज वॉल्यूम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 23.8 प्लस 23.8 divided by 2, so I believe it's going to be 23.8। यहाँ लिख दीजिए 23.8। I hope you get the logic। ये मैंने बेटा बगैर सॉल्व किए कर दिया है, बट लेट मी चेक वन मोर टाइम। Yes, that's the answer, 23.8। All right, और ये जो Q है ये याद रखिएगा, ये KMnO4 का सोल्यूशन है। ओके, तो आपने ये एवरेज टाइटर KMnO4 की निकाली है। दिस इज द KMnO4 की थी, ठीक है। तो कह रहे हैं solution Q has a concentration of this and potassium magnate 7, calculate the number of moles of potassium magnate 7 and the average volume। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 1000 centimeter cube of KMnO4 has 0.0100 moles, और अगर आपके पास 23.8 cm क्यूब है तो मोल्स बताइए। सो मेरे पास मोल्स होने चाहिए 23.8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 1000, so it's going to be 2.38 into 10 to the power minus 4। 2.38 into 10 to the power minus 4 moles। Okay, now the next is 1 mole of KMnO4 reacts with 5 moles of Fe2 plus। Calculate the number of moles of Fe2 plus in 25 cm cube of P। तो यार आपके पास MnO4 नेगेटिव है और Fe2 प्लस है। बाय द वे ये रिएक्शन मैंने क्लास में करवाया और मैंने आपको बताया कि इन दोनों के दरमियान 1:5 का रेशियो होता है। तो अगर आपने 2.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स है तो बताइए ये इसके मोल्स कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए। तो इट्स गोइंग टू बी 1.19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। ओके, फिर वो कह रहे हैं एंड ऑब्वियसली ये जो आपके पास आए हैं मोल्स 1.19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये इन 25 cm क्यूब है, ठीक है। 25.0 cm क्यूब ऑफ P ये लिखना जरूरी होता है ताकि कैरी फॉरवर्ड हो जाए। अब वो कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस इन 500 cm क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 25। सो ये जो मोल्स आपने निकाले थे पार्ट आई में, ये 25 cm क्यूब ऑफ P के थे, that is 1.19 into 10 to the power minus 3 moles, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं 500 cm क्यूब में निकालो, तो हम 500 cm क्यूब ऑफ P लेते हैं और उसमें बताते हैं कितना होता है। तो इसमें आ रहा है मेरे पास 0.0238
8 moles. Okay. Next, calculate the mass of iron in 500 cm cube of P. So AR of iron is 56 और moles of iron हमने कितने निकाली है यहाँ पर 0.0238. तो 0.0238 को मल्टीप्लाई करो 56 से, ये आ जाएगा moles equals to mass upon AR. I need to find out the mass of iron. और moles कितने हैं मेरे पास? 0.0238. उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आयरन के AR से, विच इज 56. तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.3328 ग्राम. तो हम यहाँ लिख देते हैं 1.33 और ये 2 है तो इसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं 33 ग्राम, 1.333 ग्राम. तो वो कह रहे हैं यूज योर आंसर टू A and K to calculate the percentage by mass of iron. तो percentage by mass of iron अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मास ऑफ आयरन 1.333 ग्राम निकाला था. इनिशियल मास मुझे यहाँ पर गिवन था, ये रहा 1.78. oops, ये रहा 1.78. इसको यूज करूंगा मैं 1.78 इंटू 100 करेंगे हम, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.78 तो ये हो जाएगा 74.87%. 74.87%. तो मैं इसको लिख देता हूँ 74.9%. ओके, that's the end of question number I believe 4. Let's move on to question number 5. I'm glad कि आपके पास दो सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं. तो अगर किसी बच्चे के सॉल्ट एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है तो उसके तो फुल मार्क्स हैं. But somehow let's start. Solid R contain 2 cations and 1 anion. बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके 2 cation है और 1 anion है. Complete the table. Name any gas that are formed in the test. Okay. R is dissolved in water. The solution is divided into 3 portions, B, C and D. A colored solution is formed. आप जानते हैं कि जब भी कोई colored solution होता है, obviously वो transition element को represent करता है. तो हम यहाँ लिखेंगे कि R contain transition metal ion. ओके, तो वो कह रहे हैं to a portion of the solution from A, aqueous ammonia is added until a change is seen. R contain chromium 3 plus और Fe2 plus ions. आप जानते हैं कि इसका कलर भी ग्रीन होता है, इस कलर का भी ग्रीन होता है, और आप जानते हैं कि इसके ग्रीन प्रेसिपिटेट्स रिमेन्स इनसॉल्युबल और क्रोमियम 3 प्लस जो है उसके भी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स होंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे पीन precipitates are formed. Okay, now the next is excess aqueous ammonia is added to the mixture from B1. तो जाहिर सी बात है जब excess aqueous ammonia ऐड करेंगे तो दोनों के precipitates remains insoluble. तो आप लिखेंगे यहाँ पर precipitates remains insoluble. फिर वो आपसे कह रहे हैं to the portion of the solution from A, aqueous sodium hydroxide is added until a change is seen. तो आपके पास अगर क्रोमियम और Fe2+ है तो अगेन आपके पास आएंगे green precipitates. ओके, फिर वो आपसे कह रहे हैं an excess of aqueous sodium hydroxide is added to the mixture from C1. तो R contain chromium 3 plus और मैंने आपको बताया था कि chromium 3 plus excess aqueous NaOH के अंदर डिसॉल्व होकर ग्रीन सॉल्यूशन देता है. सो प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व होंगे
and a green solution is observed. Okay, next. Whew. Okay, to the mixture from C2 is warm and the gas form is tested with damp red litmus paper or contain ammonium ions. तो मैंने आपको बताया कि when any ammonium salt react with any alkali under heat, then always ammonia gas is formed, which turns red litmus paper blue because ammonia is the only alkaline gas. इसलिए वो red litmus को blue में convert कर देते हैं. So हमारे पास क्या होगा? हम लिखेंगे अमोनिया गैस is given off. Is given off. यहाँ लिख देते हैं अमोनिया गैस is given off. That's it. नहीं, that's it नहीं, उसने कहा damp red litmus paper, तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा ना, तो वो मेंशन करेंगे which turns damp red litmus into blue. यानी पूरी बात लिखनी है, उसने हाफ दिया हुआ है आपको इंफॉर्मेशन. ठीक है, राइट. कंटेन क्लोराइड आयंस, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं. तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे add few drops of nitric acid followed by सिल्वर नाइट्रेट. तो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे, इसका मतलब क्लोराइड आएंगे. So that's the end of question number 5. Let's move on to question number 6. Okay, the reaction between aqueous lead 2 nitrate and aqueous potassium iodide produces a precipitate of lead 2 iodide. That's called precipitation reaction. एक insoluble salt को prepare कराया जा रहा है. Precipitation reaction in which an insoluble salt is formed, and that insoluble salt is lead 2 iodide. A student has two solutions. G is 1 mole per dm cube Ki. H is lead nitrate of unknown concentration. The student determine the concentration of H. Yani we need to find out the concentration of lead 2 nitrate. Okay, ये हमें कैलकुलेट करना है. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा जा रहा है कि हम H का 5 cm³ लेंगे और उसको 10 cm³ of G में in a test tube place करेंगे. Remove the precipitate by filtration. Measure the mass of the pure dry precipitates. Repeat the different volumes of H. Okay. The student uses a burette to measure the volume of H. H का वॉल्यूम कितना है मेरे पास? 5 cm³. ठीक है. State why the student uses a burette instead of measuring cylinder. Because burette जो है वो ज़्यादा accurate है. Because burette is more accurate and precise than measuring cylinder. उसके बाद वो कह रहे हैं suggest why the student does not repeat the experiment with more than 30 cm³ of H. ओहो, इसलिए आप नोट करें जब 20 और 10 का कॉम्बिनेशन था तो 2.31, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन था फिर 2.31, फिर 30 और 10 का कॉम्बिनेशन था 2.31. तो आप मोर देन 30 लेते तब भी कॉम्बिनेशन 2.31 ही रहता ना. यानी मास ऑफ प्रेसिपिटेट चेंज नहीं होता इस, अगर मैं ज्यादा वॉल्यूम ऑफ H भी ले लेता तो हम यहाँ लिख देते हैं कि मास ऑफ precipitate of H
would remain same, ठीक है, because वो constant होगी ये value, ठीक है। if you notice आप बल्कि यहाँ पर लिख सकते हैं constant values, इसका मतलब reaction complete हो गया है, constant value reaction is finished, ठीक है। next, plot the result from the table on the grid. Draw one straight line through the first 3 points and second straight line through the other 3 points. Okay. So guys, मैंने ये ग्राफ बनाया and I've tried my level best कि बिल्कुल accurate मिले आपको। तो ये मैंने first 3 लाइन जो थी उनकी straight line बनाई और ये 3 पॉइंट जो थे उनको भी straight line में कन्वर्ट किया। फिर एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि extend both straight line until they intersect, यानी एक्सट्रापोलेट किया। तो मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड किया, एक्सट्रापोलेट किया और इसको भी एक्सट्रापोलेट किया, तो ये इंटरसेक्ट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। ग्राफ जरूर बनाइएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं यूज योर ग्राफ टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ओके। डिटरमिन द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म when 12 cm cube of H is added to 10 cm cube of G. Okay, when 12 cm cube, okay, 12 cm cube, so this is basically your 12 cm cube, okay, oops. तो ये तकरीबन अगर आप नोट करें ये 1.50 है, ये इसमें 0.05 की एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1.55 आई थिंक सो ये 1.55 आ गया आपके पास, ठीक है। तो मैंने जिस कलर से डिटरमिन किया मैं उसी कलर से मेंशन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद डिटरमिन द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ H नीडेड टू 10 cm cube of G to make exactly 0.8 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट। गाइस मेरे पास 0.8 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट है, तो 0.8 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट, 0.8 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट ये है मेरे पास। सही है, लाइन थोड़ी सी तमीज की आ जाए, ठीक है। उप्स 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 उप्स, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये तकरीबन हो जाएगा मेरे पास, ये 0.5 है तो 6.5 फिर 7, तो ये 6 पॉइंट समथिंग 2 होगा मेरे ख्याल से, 6.2 6.3, ओके, अप्रोक्सीमेटली। आगे चलते हैं, फिर वो कह रहे हैं यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ H दैट रिएक्ट्स विद ऑल द Ki इन TM। तो ऑल कहां पर हुआ, ऑल हुआ है जनाब यहाँ पर, ये आएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज के हम कोई कलर लेते हैं बहुत अच्छा सा, ऐसा कलर जो कि कूल हो। चलो ये लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ से ड्रॉप कर दें, सही। अब सही। सो बेसिकली 18 cm क्यूब के ऊपर आ रहा है एग्जैक्टली, तो हम यहाँ लिख देते हैं 18.0 cm क्यूब, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। वो कह रहे हैं G इज 1 मोल पर DM क्यूब Ki, ओके। तो गाइस वॉल्यूम ऑफ Ki कितना था, ये हमने इनिशियली आपको बताया था 10.0 cm क्यूब, इफ यू रिमेम्बर। ये देखिए ये रहा 10 cm क्यूब ऑफ G एंड G इज पोटेशियम आयोडाइड, सही है। सो मैं इन ये वॉल्यूम और ये कंसंट्रेशन दोनों को यूज करके मोल्स कैलकुलेट करूंगा
ये तो मेरा पहला स्टेप हो जाएगा। आगे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस इज शोन। ओके, यूज योर आंसर टू E1 and the equation to calculate the concentration of this. That's what we need to find out. Okay. So guys, मेरे पास सबसे पहला है 1000 cm cube of Ki contain how much moles? 1.0 moles. So अगर मेरे पास 10.0 cm cube हो गए Ki के, so बताइए मोल्स कितने होंगे। so भाई मोल्स हो जाएंगे हमारे पास 0.01 moles of Ki. ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में रेशो है 1:2 का। अगर आपने ये 0.01 मोल लिए हैं तो बताइए मोल ऑफ लेड टू नाइट्रेट कितने हो जाएंगे। 0.01 divided by 2 is going to be 5 into 10 to the power minus 3 moles. ये हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 3 moles. Okay, and I need to find out the concentration. Concentration of lead to nitrate. तो concentration of lead to nitrate के लिए obviously मुझे वॉल्यूम चाहिए G का, तो H का। तो H का वॉल्यूम मेरे पास कितना आया है 18 cm क्यूब, जो कि मैंने यहाँ ग्राफ से निकाला है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो ये जो मोल्स आए ये 18 cm क्यूब के अंदर है गाइस। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 18.0 cm क्यूब ऑफ H contain 5 times 10 to the power minus 3 moles। तो अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा मैं। सो मेरे पास कंसंट्रेशन एक्चुअली कितनी हो जाएगी। वेट, कंसंट्रेशन ऑफ lead to nitrate। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ lead to nitrate मेरे पास आ रही है गाइस मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 18। सो ये आ रहा है मेरे पास 0.277 मोल पर डीएम क्यूब। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाएगा 0.278। तो 28 कर देते हैं, ठीक है। That's the end of this question number 6. That's the end of the paper.